जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ। 84 ਕੁਛ, ਉਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ 84 ਕੋਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਮੰਮੀ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਨੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ, ਸਭ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਮਰੀ ਲੋਸ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਅੱਜ ਘਰੇ ਸੁਬਾਹ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਆਏ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰ ਕਣ ਕਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र जाप सिर्फ मंत्र जाप नहीं है, ये एक जीने का आधार हो चुका है मेरे लिए। मैं गुरुजी की लाडली बेटी बोल रही हूँ। मैं आज आपके साथ एक बहुत प्यारा सा सत्संग शेयर करूँगी जो शिवरात्रि वाले दिन आउट ऑफ फीमेल प्रॉब्लम मैं ना पूजा कर सकती थी, ना मैं शिव मंदिर जा सकती थी। तो मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा था, लेकिन गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वो इन सब बंधनों में हमें नहीं बांधते हैं। वो ये सब वहमों में नहीं पड़ते हैं या ये टच नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। तो मन तो उदास था कि यार डेली जल चढ़ाती हूँ और आज ही नहीं चढ़ा पा रही हूँ। तो मैं जब अपने बाबा जी के कमरे में गई तो एकदम से मुझे अंदर से ऐसा लगा कि नहीं, मैं सत्संग कर लेती हूँ, उसमें क्या है। मैं शांति इधर भी तो ढूंढ सकती हूँ ना। मैं अगर नहीं जा रही हूँ तो मैं गुरुपा के पास बैठ जाती हूँ और उधर उन सत्संग सुन लेती हूँ 1 घंटे का प्लेलिस्ट ऑन करके, आधे घंटे की प्लेलिस्ट ऑन करके। तो फिर प्रसाद क्या करूँ, अब रात के 8 बज रहे हैं, तो क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जो खाना बनाया वो भी जूठा हो गया है। तो एकदम से मुझे थोड़े दिन पहले ही एक सत्संग आया था कि तुझे जो भी बीमारी है तो ये उपाय कर ले। तो 2 इलायची मेरे स्वरूप से आपके सामने रख दे और उसे ग्रहण कर लेना। तेरे घर में जो भी बीमार है वो ठीक हो जाएगा। जा कुड़िए, तेरा कल्याण किता। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इलायची का प्रसाद में रख देती हूँ, वो भोग लगाऊंगी गुरुजी को। और जल प्रसाद तो रह गई। तो कितनी इलायची रखूँ मैं? हम 5 जन और मम्मी पापा के यहाँ सिर्फ अभी 2 भाई हैं। मम्मी पापा वगैरह तो कहीं गए हुए हैं। तो ऐसे मैंने 7 इलायची गिन के रख दी। और स्पेशली मैं इलायची लेकर आई थी, उसीलिए मुझे याद है कि मैंने 7 इलायची गिन के रखी थी। फिर सत्संग हुआ, सब चीज़ें हो गया। फिर जब मैं आरती के बाद भोग लगा रही थी और मैंने देखा तो वो 8 इलायची थी। मैं 2 बार अचंभित रह गई। और उस दिन मुझे जोत में दर्शन भी हुए गुरुजी के। मैं सिर्फ वही देखे जा रही थी, मेरा ध्यान भी नहीं था इलायची की तरफ। तो मैं सिर्फ जोत को निहारे जा रही थी और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मैं सत्संग सुनते सुनते, शब्द सुनते सुनते मेरी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। ऐसे लग रहा था मेडिटेशन हो रहा है और अंदर से सब क्लीन हो रहा है। जो दुख दर्द मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ, व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, वो एक बोझ निकल रहा है। और उस समय कुछ हलचल चल रही थी, मन उदास था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो बहुत हल्का लगा उस सत्संग के, वो शब्द और सत्संग करने के बाद। फिर 8 इलायची देख के तो मैं अचंभित रह गई। मतलब मुझे ऐसे लगा कि वाह यार, मैं मतलब बस दुनिया की सब खुशियाँ मिल गई है, एकदम ब्लेस्ड, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, कोई नहीं मानेगा, तू शायद गलती से 8 ही रखी होंगी, गलती से 7 गिन रही है, तेरे माइंड में वो था। तो फिर मैंने सोचा जो भी हो, इतना तो श्योर है मैंने 3 बार गिन के ही रखा था 7, क्योंकि 7 नंबर चाहिए था और 7 ब्लेसिंग, तो मैंने गिन के ही रखा था। बट अगर कोई नहीं भी विश्वास करे तो ना करे, मेरे लिए तो वो 1 गुना बढ़ के ही है ना। मतलब मुझे तो ये फील हुआ है कि मुझे ब्लेसिंग मिली है, तो इट्स फीलिंग बिटवीन मी एंड माई गुरुजी। तो मैं क्यों किसी के लिए वो बताऊं, या जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझा है ना समझे। तो मैं तो उसी में खुश हो गई थी, वो देख के और अपनी फीलिंग समझ के। जैसे मैं 1 कदम बाहर रखती हूँ मंदिर से, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुलाबों की खुशबू आ रही थी। ऐसे लगा किसी ने मुझे गुलाबों की टोकरी में बैठा दिया हो। फिर मैं सबको इलायची प्रसाद घर में और जल प्रसाद दे रही थी। तो मैंने बोला, मम्मा आपको खुशबू नहीं आ रही है? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं आ रहा है।
तो क्या बात कर रही है? मैंने बोला नहीं ना, और इलायची भी है कि एकदम मुझे आज दर्शन भी हुए हैं, आज क्या हो रहा है, आज तो मज़ा ही आ गया है बिल्कुल एकदम। तो बोले वाह, बहुत बढ़िया बात है बेटा, तेको तो दर्शन भी हुए हैं। मैंने बोला हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने बोला तो हो ना हो, स्मेल तो आ रही है मुझे और मुझे ही आ रही है, लेकिन यहाँ कुछ शायद स्प्रे किया आप लोगों ने या कुछ है। तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ अंदर से आवाज़ दी कि मैंने ना हाँ ओडोनिल का अभी एयर फ्रेशनर वाला कुछ तो भी सैशे रखा है, खोला था, कल खोला था मैंने उसको। तो मैंने सोचा ठीक है यार, कल खोला, लेकिन मुझे अभी आई और मम्मी को इतनी देर से नहीं आ रही थी और सत्संग से पहले नहीं आ रही थी मुझे, सत्संग के बाद ही। तो आई एम हैप्पी कि चलो ये दिस इज़ वन ऑफ द इंडिकेशन कि हाँ, गुरुजी ने मुझे इंडिकेशन दिया है कि बेटा मैं हूँ तेरे साथ, तो टेंशन ना ले, क्योंकि सत्संग में कुछ चीज़ें चल रही थी मेरे मन के अंदर, मुझे कुछ क्वेश्चंस थे, हलचल चल रहा था, तो सबके जवाब मुझे मिल गए। सॉरी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इलायची प्रसाद जो गुरुजी बोलते हैं उसमें इतनी ताकत है, वो हमारे सब दुख दर्द को भी कम करती है। और जल प्रसाद तो था ही, वो तो उनको उस जल प्रसाद को तो गुरुजी ने ब्लेस्ड किया हुआ है। सिर्फ आप 7 बार भी मंत्र जाप करके, कुछ जल, सादा जल को भी 7 बार मंत्र जाप करके आप ग्रहण करोगे तो वो प्रसाद बन जाता है, और जब वो प्रसाद है तो फिर तो वो आपका कल्याण करके ही जाएगा। बस मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरुजी। गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने शुक्राना किया नहीं है, काफ़ी हफ्ता 2 वीक्स हो गए मेरे ख्याल से। तो जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे डुगरे वाले गुरु जी। मुझे पता है गुरु जी आपको शुक्राना बहुत पसंद है, तो अनंतम अनंतम शुक्राने हैं गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, डुगरी वाले गुरु जी, छतरपुर वाले गुरु जी, बड़े मंदिर वाले गुरु जी, सरकारों की सरकार, राजन के राजा महाराजा, आपका दिल 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 तहे दिल से बहुत शुक्राना, मेरी हर सांस से शुक्राना, मेरे रोम रोम से शुक्राना है गुरु जी। जो आप कर सकते हो गुरु जी वो कोई नहीं कर सकता, और जो आपने मेरे लिए किया है ना गुरु जी, वो आज तक किसी ने नहीं किया गुरु जी। इतना प्यार आप देते हो, हर पल इतना ध्यान रखते हो, घर से निकलती हो तो साथ आते हो गुरु जी, और घर तक मुझे सेफ अपने साथ लेके आते हो गुरु जी। हर पल मेरे अंग संग रहते हो, मेरे साथ रहते हो। जब भी कभी उदास होती हो तो हंसाते हो गुरु जी, जो भी कुछ खाने को चाहिए था वो खाने को देते हो, नाम जाप भी कराते हो गुरु जी, हर चीज़ देते हो गुरु जी, और हर बुरी बला से बचाते हो गुरु जी। और इसका बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु जी कि मेरे घर परिवार फैमिली में ना ससुराल साइड से ना मेके साइड से किसी को भी एक खरोंच नहीं आने दी गुरु जी। आपने अनंतम शुक्राना है गुरु जी, जबकि गुरु जी पता है आपको, गुरु जी आपने मैसेज भी किया था कि मुझे पता है कि तेको तेरे ससुराल वाले तंग करते हैं, बहुत तंग करते हैं, लेकिन गुरु जी आपका प्यार है ना, आपने अपने प्यार से ऐसे संभाला हुआ है ना सबको। बस मुझे ये लगता है कि मेरे गुरु जी इतने प्यारे गुरु जी, मेरे भगवान, मेरे महादेव, मेरे महाशिव, मेरे भोले बाबा गुरु जी, हाँ मेरे जीवन में आए, आपने मुझे अपनी संगत बनाया। अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। आपने गुरु जी एहसास कराया कि रब का प्यार क्या होता है, कैसे रब कैसे प्यार करता है, कैसे रब से बातें होती हैं। किस किस गल का शुक्राना करा गुरु जी। नए जीवन देने का शुक्राना, मुझे इतनी बीमारियों से बचाने का शुक्राना गुरु जी। मुझे पता आपने मेरे को न्यू लाइफ दी है आज को, तो मेरे को तो मतलब मैं इस दुनिया में ही नहीं होती, मुझे पता है मैं नहीं होती इस दुनिया में गुरु जी, तो आपने मुझे बचा लिया। आप महाशिव हो ना गुरु जी, तो आप शिव रूप में, महाशिव रूप में, और सबसे प्यारे गुरु जी वाले रूप में
आपने खुद मुझे अपनी संगत बनाया, क्योंकि मेरी तो कोई औकात नहीं, जितना ये संसार है, मृत्यु लोक है ये। इस दुनिया में हमने जन्म लिया, आपने हमें जन्म दिया। आपके ही हम अंश अंश है, शिव के अंश हैं हम, आपके ही अंश है, शिव भगवान के। आप भगवान हो, शिव भगवान हो। गुरु जी, आपने हमें दुनिया में लाया। जब हमारी दुनिया में इतने दुख बढ़ गए, किससे नहीं संभलते थे, तो गुरु जी आप लाइफ में आए, तो आपने मुझे नई लाइफ दी, न्यू लाइफ दी। मेरे हर एक फैमिली के मेंबर को हर तरह से ब्लेस किया, जिसको जो ज़रूरत थी वो सब कुछ दिया गुरु जी। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच मेरे साहिब जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग गुरु जी। आप कितना ध्यान रखते हो गुरु जी हर चीज़ का, खाने पीने पहनने का तो रखते ही रखते हो गुरु जी, वो तो आप वैसे भी सबको दे रहे हो, पूरी दुनिया को आप ही खिला रहे हो। आप भगवान हो, रब हो गुरु जी, आप इतने प्यारे गुरु जी, हमारे क्यूटी वाले गुरु जी हो, रुगरी वाले गुरु जी हो, इतने हैंडसम से गुरु जी हो, हमारे इतने प्यारे गुरु जी हो। आप भगवान हो गुरु जी, इतने प्यारे प्यारे हमें भगवान इस रूप में मिले, कितने सुंदर कि आपका हम इस दुनिया में आए गुरु जी। और ये युग जो चल रहा है, इस युग में भगवान आए, और भगवान इस रूप में आए, साक्षात साकार रूप है भगवान का, कि हमने देखा भगवान को, महाशिव को खुद इस दुनिया, जिससे ही इज ऑल माइटी गुरु जी। आप ऑल माइटी हो, निरंकार हो, परमात्मा हो, सचखंड बसता है निरंकार। पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड को शक्ति ताकत आप दे रहे हो, तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी। मुझे इतना जादू टोने से, इतना आजकल तो मेरे को इतना ब्लैक मैजिक हो रहा है गुरु जी, मुझे हर रोज गुरु जी मैसेज करते हैं, देखो तब मेरा सर में दर्द हो रहा है, और इतने मेरे सर में अंदर पता नहीं क्या होता रहता है, मैं ऐसे तो इससे मेरे को चक्कर चक्कर आ रहे हैं, उठा नहीं जा रहा है मुझसे, इतनी तबीयत मेरी खराब थी। संगत जी फिर मुझे गुरु जी ने बचाया, मुझे न्यू लाइफ दी गुरु जी ने सच में, क्योंकि मेरे को इतना प्रॉब्लम हो रहा था, इतना प्रॉब्लम हो रहा था, सिर्फ गुरु जी जानते हैं कि लाइफ 1 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन गुरु जी ने मुझे बचाया, क्योंकि आप तो महाशिव हो ना, महाकाल हो ना गुरु जी। जंतर मंतर तंत्र ये है आपके खेल खिलौने, लेकिन गुरु जी दुनिया वाले नहीं जानते हैं। ऐसे जो नजरें नजरें लोगों की नजरें होती ना गुरु जी, इनसे बचाना, बस आप ऐसी टाइमिंग बिठाना कि जो लोग हमें देख के खुश हैं ही नहीं, उनको हमसे दूर कर दो। बस मैं तो ये बोलती गुरु जी, उनको इतना दूर कर दो कि बस हमसे कभी मिले ही ना वो लोग, जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं गुरु जी, पता नहीं क्या सोचते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, स्पेशल मेरा ये सत्संग था कि मैं जो थी लास्ट मंथ के एंड ऑफ मंथ में, जैन एंड में, तो मेरा ऑफिस था, मैं ऑफिस से गई थी नोएडा में, नोएडा, तो मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, 2-3 मेट्रो चेंज करनी थी, इतनी ख़राब हो गई थी संगत जी, इतनी ख़राब हो गई थी कि मेरे को सांस ही नहीं आ रहा था, सांस ही नहीं आ रहा था। तो मुझे नहीं पता गुरुजी ने मेरे को कैसा मेरा सांस वापस लाया, कैसे मुझे बड़े मंदिर पहुंचाया। उस दिन गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी सच में। मैं तो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा सांस ही पूरा नहीं हो रहा था, नाक भी बंद, गला भी बंद, और लग रहा था कि मेरा सांस ही पूरा नहीं हो रहा, दम घुट रहा है मेरा। पता नहीं गुरुजी ने मुझे कैसे, ऐसे लगा हवा का झोंका आया और मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे महाराज, मेरे प्यारे गुरुजी। अनंतम शुक्राना। मेरे घर में जो है, मेरी बहन की छोटी सी गुड़िया आई है, ताक्षरी नाम रखा है गुरुजी ने उसका, तो बहुत ही प्यारी है। थैंक यू सो मच गुरुजी, हमारे घर में खुशियाँ देने के लिए, खुशियाँ बनाए रखने के लिए, और मेरे घर परिवार को हर संकट से बचाने के लिए। और स्पेशली जो हमारे घर में ससुराल में जो भी हमारा कुछ बुरा नहीं, मतलब हमारा इतना क्या क्या हमारे लिए करते हैं, क्या क्या बोलूँ संगत जी। जैसे जो टाइम चल रहा है, गुरुजी ने बचा रखा है मुझे संगत जी। इतना ब्लैक मैजिक हो रहा है, इतना ब्लैक मैजिक हो रहा है, मुझे नहीं पता, मेरे दिल दिमाग शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसमें मिले हुए जो मेरे घर के लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन गुरुजी आप देख लो, आपके ऊपर छोड़ा है मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है, बस आप देख लो गुरुजी। अभी तक आपने देखा और आगे भी आपने ही बचाना है गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग गुरुजी। अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों की प्रीति देना, बस बुलाते रहना, बड़े मंदिर सत्संग करवाना, शुक्राना सत्संग, बहुत खुश होके फैमिली के साथ
बहुत जल्दी आपने ही करवाना है महाराज जी। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर एवरीथिंग। शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे गुरु जी, मेरे डिग्री वाले गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। आज गुरुवार है और गुरु जी का भी दिन है और आज तारीख है 19 तारीख है और अभी 9:47 हुए हैं और मैं कब से ट्राई कर रही हूँ सत्संग शेयर करूँगी, आज सोच रही हूँ तो मैं सत्संग सुनने लगती हूँ क्योंकि इतने सत्संग गुरुजी ने ब्लेस ब्लेस सत्संग भेजे हैं और लग रहा है कि मैं सारी सत्संग सुनूं क्योंकि सारे सत्संग में मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी बता रहे थे ये सुनो वो सुनो ऐसा होगा, पर अंदर में कुछ ऐसा नहीं था। बस सारे सत्संग में ब्लेस कर रहे हैं, गुरुजी कुछ बता रहे हैं हमारे बारे में, कुछ इतना अच्छा मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। और मैं इस तरह सुन रही हूँ, फिर सुनते-सुनते हमारे दीदी का फ़ोन आ गया, फिर मैं उससे ही बातें करने लगी, तो गुरुजी की ये भी मर्ज़ी कि नहीं तू सारे काम सल्टा करके तू निश्चिंत दिल नाल तू सत्संग शेयर कर। तो गुरुजी कहते हैं तेरी सेवा ही है सत्संग शेयर कर और बस कृपा पाते जा। तो शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी। पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। मैं कल भी सत्संग शेयर करना चाह रही थी पर मेरे अंकल जी घर में ही थे तो मैं सत्संग शेयर कर ही नहीं पाती हूँ, वो घर में रहते तो अच्छा नहीं लगता है। और वो सोचते पता नहीं क्योंकि गुरुजी को मानते हैं तो वो गुरुजी जाने कितना वो मानते हैं। और गुरुजी की बातें क्योंकि गुरुजी सब अपने से जोड़ते हैं, वो गुरुजी जाने गुरुजी की लीला। और पर जब भी इस तरह से हम लोग संग जो शेयर करते हैं तो उसको लगता है कि हम लोग एक ही चीज सुनते हैं, एक ही चीज शेयर करते हैं। शेयर मतलब वो उसको समझ में नहीं आता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूँ और कोई मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ऐसा कुछ कहे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं कल कर ही नहीं पाए, तो वो गए भी सोने के लिए। तो मेरी बेटी का मैथ का एग्जाम है आज, तो कल वो रिवीजन कर रही थी। तो मैंने उसे समय दिया और वो मेरा मोबाइल, तो वो मेरे हस्बैंड वाले मोबाइल बोलती मम्मी इसमें तुम शेयर कर लो, इसमें सेंड कर देना। पर हमको अजीब सा लगा कि नहीं हम अपने मोबाइल पे ही करेंगे। तो मैं कुछ लेस वगैरह मीशो पे देखना क्योंकि शादी है, तो मुझे कुछ ड्रेस भी बनाना है तो वो ग्रुपा पे छोड़ दिए। मैं जानती हूँ जब काम हमको कुछ समझ में नहीं आता है कपड़े का भी कुछ भी, तो गुरुजी सब समेट लेंगे वो सब कर लेंगे, कुछ तैयारी नहीं किए हैं। पर गुरुजी को हमको विश्वास है गुरुजी एकदम खूब अच्छे से तैयार करेंगे और खूब अच्छे से तैयारी और खूब सोने-सोने कपड़े भी हमको दिलाएँगे और सिलवा देंगे भी। तो मैं कल की बात करती हूँ, कल भी गुरुजी का इतना अपार गुरुपा का रोज़ मैसेज आता है, अच्छे-अच्छे मैसेज भी आते हैं और डरावने-डरावने भी आते हैं कि तांत्रिक क्रिया वो कर रहे हैं मेरे बच्चे पे, मेरे हस्बैंड पे, काली की क्रिया, वशीकरण, गुरुपा बहुत से ये काले क्रिए वाले सब सत्संग भी सुनवा रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं और हार्ट अटैक, आँखों की सत्संग सुनवा करके, बच्चे के सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे हैं। और आज गुरुपा ने पैरालाइज़ का जो है वो सत्संग भी सुनवाया, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो गुरुजी ने कहा हॉस्पिटल जाने से पहले तुझे हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना पड़े तू पहले सत्संग सुन ले। तो मैंने सुना सुबह में जपजी साहब के पाठ के बाद, तो वो हमको लगा सत्संग काफ़ी लंबा हो क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना था क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी हो गया, आज बेटी का एग्ज़ाम भी है।
तो मैं सवेरे उठी और मैं रात को अरदास करके गुरुजी से सोई थी कि गुरुपा हमको सवेरे उठाना, क्योंकि इधर से पता नहीं क्यों कौन-सा गुरुजी कहते हैं तुम्हें नज़र लगी है, बुरी नज़र लगी है, तुम्हारे पे काला साया जो भी है वशीकरण जो भी करे वो, क्योंकि आजकल ना मुझे पूजा करने में भी मन नहीं लगता है, ना मैं मंत्र जाप करती हूँ पर हो नहीं पाता है। जैसे लगता है कि मैं ज़बरदस्ती गुरुजी के साथ बैठती हूँ, गुरुजी हमको बैठाते हैं पर वहाँ से मेरा मन हट जाता है और मैं इधर आ जाती हूँ और पता नहीं क्या है, वो गुरुजी कहते हैं तुझे नज़र लगी है, तो मैं वो सब नहीं कर पाती हूँ और गुरुपा कहते हैं तू तू जो करती है ना, तू किसी का भला करती है पर तेरा भला होता नहीं है। तू अब किसी को अपनी बातें मत बताया कर और ना ही शेयर किया कर। और पर क्या करूँ गुरुजी, आपकी बेटी जैसे आप बोले क्योंकि हम आपकी बेटी है ना, आप तो कहते हो ना कि तू सदाशिव की बेटी है, तो भोलेनाथ की मैं बेटी हूँ तो भोली ही रहूँगी ना। आप रहते चालाक तो आपकी बेटी भी चालाक हो जाती। तो गुरुपा आपकी बेटी मैं चालाक बनना भी नहीं चाहती, मैं भोली ही रहना चाहती हूँ गुरुपा। बस आप देख लेना गुरुपा, जो चालाकियाँ करते हैं उसकी चालाकियाँ वहीं फ़ेल कर देना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं इस तरह से, तो मैं जाती हूँ पूजा करती हूँ सब, पर लगता है कि कोई पूजा कर दे, कोई ये काम कर दे, फिर बस मैं जाऊँ थोड़ा बहुत कर लूँ। और मुझे ये भी ध्यान रहता है कि अगर गुरुजी का कॉफ़ी प्रसाद नहीं लगता है, चाय प्रसाद, तो वो मैं करती हूँ, पर लगता है कि आधा काम पूरा कर दे। पर मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा अपनी सेवा भक्ति सिमरन ही देना मुझे बाबा। और गुरुजी की कृपा से सब कुछ गुरुपा ने सब कुछ अच्छा कर दिया है। मैं ये आज सत्संग शेयर करने जा रही थी, गुरुपा जी कहते हैं, "तू सत्संग अपना शुरू से स्टार्ट कर।" तो मैं शुरू से स्टार्ट करूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँगी कि पहले की मेरी जो लाइफ थी बहुत चिंताजनक, मैं छोटी-छोटी बातों में बहुत परेशान हो जाती थी। बहुत ही, अगर मुझे कोई कुछ कह दिया तो मैं इतना ज़ोर-ज़ोर से मेरी कलेजा एकदम धड़-धड़ धड़-धड़ करने लगता कि वो उसने ऐसा कह दिया, वो वैसा कर दिया, या कुछ कहता तो मैं रोने लगती और खूब बन-बनाती जो बोलता तो उसको भी उल्टा-सीधा मैं बोलने की कोशिश करती और अपने आप को कोसती, मैं उसे कोसती कि हमको ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। पहले मैं इस तरह की थी और जो कि गुरुजी कहते हैं, मेरी कृपा तो बचपन से तेरे साथ है, पर जो तुम्हारे ऊपर नेगेटिव, क्योंकि मैं सदाशिव की बेटी हूँ, मैं बचपन से ही बहुत ही तेज, मतलब ये कहो इंटेलिजेंट बच्चा हूँ। छोटी-सी भी थोड़ी-सी भी झलक अगर आप मुझे पर्दे की आड़ से भी कोई चीज़ बताओ, तो मैं जल्दी सीख जाती हूँ और जल्दी कैच भी कर लेती हूँ और बहुत कुछ फ़ॉलो करती हूँ और बहुत कुछ पाने और कुछ करने की, अपने बदौलत लक्ष्य पाने की बहुत कोशिश करती हूँ। ये मेरी जो ऊर्जा शक्ति है मेरे भोलेनाथ का है। ये ऊर्जा शक्ति मेरे अपने लोग, मेरे मैके मैके में भी सब लोग कहते थे, मेरी चाची सास, ये मेरी चाची जो है, चाचा भी बोलते थे, बहुत ही तेज़ है, बहुत होशियार है। मतलब सबकी नज़र मेरे पर हमेशा बुरी नज़र रहती थी और मैं बहुत ही बचपन में अच्छा होने के बावजूद भी मैं बचपन से आज तक बहुत ही मैं नेगेटिव भाव से गुजरती आ रही हूँ। मुझे इस वजह से मुझे ना अच्छे से बचपन में ग्रोथ मिला, ना ही बड़े हुए ग्रोथ मिला, ना ही मैं मतलब कहीं भी ना पढ़ाई में, लिखाई में और कोई चीज़ में, मतलब हर चीज़ में मेरा अच्छा हो के फिर बुरा होते गया। मतलब इस तरह से बुरी नज़र लगते-लगते मेरा हर चीज़ बिगड़ता ही गया काम, यहाँ तक मेरी शादी भी हुई, मैं ससुराल भी आई, तो यहाँ के लोग भी मेरे अच्छे लोग बुराई से तंग आते, मेरे अच्छाई से
तंग आकर के मुझ पे ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिए थे। जो कि मैं ससुराल में आई थी तो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं सबको प्यार से बाँध करके, दुलार से बाँध करके एक धागे में फिरो के रखूँ, सब मुझसे प्यार करें, मैं सबको प्यार दूँ। इस तरह से मैं अपने हस्बैंड को भी इसी तरह से, पर मैं जब शादी करके आई थी तो मेरे हस्बैंड भी मेरे जेठानी ने अपने वशीकरण में बाँध के रखा और मेरी ओर कभी भी प्यार की नज़र एक झलक भी देखने नहीं दी, ना ही मेरे साथ एक पल बैठने भी देने देने उन्हें चाहती थी। मतलब सब तरह से जब हमारी पूछ घर में होने लगी तो सोची कि मेरा तो सत्ता अब तो गयो हाथ से, तो उसने अपने बच्चे लोग को भी मेरे प्रति भड़काना, मतलब कोई भी आया, कुछ अगल-बगल के लोग भी हमारी शिकायत करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हमको टॉर्चर करना, मेरे हस्बैंड को कान भरना, ये सब करना शुरू कर दिया। उसके बाद से जो मेरी जो बचपन से लेके आज तक जो शादी के जो 12-13 साल जो हो गया, मेरी लाइफ वैसे ही चलती गई। उसके बाद मेरा जो टर्न लिया 2023 से, जो गुरुजी हमारे बाँह पकड़े, बाँह तो मेरे कहते हैं गुरुजी जन्म-जन्म से पकड़े हुए हैं। जब मैं गुरुजी को जानी, गुरुजी ने जो मेरी आँखों से जो पर्दा उठाया, वो मैं कह रही हूँ। गुरुजी के तो बंदे हम लोग सभी हैं, पर कहते हैं ना मोह-माया का जो पर्दा पड़ा रहता है तो हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो वो मोह-माया का पर्दा जो 2023 से जो मेरी आँखों से उठा, उसके बाद से मैं गुरुजी के जो शरण, गुरुजी जो अपने शरण में लिए हैं, उसके बाद से हमारे जीवन में बदलाव आते गया। मुझे एक हिम्मत बनने लगा। फिर मैं, जो मेरे अंदर जो डर था वो गुरुजी ने डर निकाल दिया। और उसके बाद भी मेरा ब्लैक मैजिक, मेरी जो जो थी वो नहीं खत्म हुआ, ब्लैक मैजिक और शुरू हो गया। मेरे हर काम को बांधा गया, मुझे बांधा गया, मेरे बच्चे को तोड़ा गया, मेरे बच्चे का पढ़ाई, जिस तरह मैं बच्चे से टूट रही थी, अब मेरे बच्चे को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। पर गुरुजी कहते हैं तू डर मत, जब मेरे बच्चे पे आता है तो मुझे भी दुःख होता है, तो मैं उसे छोड़ूँगा नहीं। तो वो उनकी नातिन है, नतनी है, तो गुरुजी कभी उसको माफ़ नहीं करेंगे। गुरुजी कहते तू माफ़ कर दे, क्योंकि जब तू ही सब करेगी तो मैं क्या करूँगी? तो तू सबको माफ़ कर दे, बाकी सब मैं देख लेवाँगा। तो गुरुजी अब देखते हैं, मेरी बेटी भी बचपन से बहुत होशियार है पढ़ने में। हर कॉम्पिटिशन में वो निकलती है, हर स्कूल में, हर एग्ज़ाम में वो हमेशा अव्वल आती है। बहुत ही अच्छा बचपन से उसका जो 2.5 साल का जो है, 2.5 साल का जो वो स्कूल में, प्ले स्कूल में जो गई है, उस समय उसकी पढ़ाई-लिखाई, हाथों की शैली, लिखने की लिखावट, बोलने की, उसकी जो स्टैंडर्ड जो है, हाई लेवल की, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी भी कहते हैं वो तेरी बेटी नहीं, वो मेरा छवि, वो गुरुजी का छवि है, वो गुरुजी ही है। क्योंकि मेरी बेटी भी 7 का ब्लेसिंग है और गुरुजी की वो बेटी है। तो वो गुरुजी कहते हैं वो उनकी छवि है। तो मैं मानती भी हूँ, मेरी बेटी जब से आई है तो हमारे दिनचर्या भी बदलते जा रहे हैं, तो मेरी दिनचर्या बहुत खराब थी। मेरी बेटी के आने से हमारे दिन खुले हैं। और इस तरह से मेरे 2023 से गुरुजी ने जो हमारा ढाल जो बने हैं, हिम्मत, ताकत जो बने, उसके बाद से गुरुजी कहते थे, देखना तेरे जीवन में इतने सत्संग होंगे, तू सत्संग करते-करते थक जाएगी। तो मैं सोचती थी, सत्संग किसको कहता है? तो मैं कभी समझ नहीं पाती थी, कहाँ मेरे नसीब में, क्योंकि मैंने दुःख इतने बचपन से लेकर शादी के बाद तक मैंने दुःख ही दुःख झेले थे, मुझे सुख की आभास ही नहीं, क्योंकि आज भी मुझे नहीं होता है। मुझे कोई खुशी भी मिलती, मैं ज़्यादा हाइलाइट नहीं होती, क्योंकि मुझे वैसा नहीं लगता है। गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, खुशी में भी ज़्यादा मैं बावली नहीं होती और दुःख भी होता है, मैं ज़्यादा अधीर नहीं होती हूँ। इतनी हिम्मत गुरुजी ने मुझे बख्शी है, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं शुक्राना करते-करते थकूँगी पर भी मेरा शुक्राना कम नहीं होगा। गुरुजी ने जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं गुरुजी। हमारी लाइफ में कहते हैं ना कि तुम्हारे 60% नहीं, मेरा 90% गुरुजी ने मेरा चेंज किए हैं और अभी भी चेंज कर ही रहे हैं।
पहले मैं हमेशा कोसती थी, मेरी जो शादी हुई थी, मैं अपने हस्बैंड कहते हैं ना एक शादीशुदा औरत अपने पति के लिए हमेशा रोज़ दुआएँ माँगती है, पर मैं अपने पति के लिए रोज़ कहती थी, कब मेरी ज़िंदगी मेरे लाइफ़ से निकल क्योंकि मेरे पर ब्लैक मैजिक और मेरे हस्बैंड पे ब्लैक वो मुझे देखना नहीं पसंद करते थे, हम उनको देखना नहीं पसंद ऐसी मेरी लाइफ़ थी। हमेशा सोचते आज डिवोर्स हो, कल डिवोर्स हो, आज डिवोर्स हो, कल डिवोर्स हो। मैं इससे छुटकारा पाना चाहती थी, मैं ऐसा अब मैं अपने पति के लिए कभी कोई तीज त्योहार भी नहीं की क्योंकि मैं स्टार्टिंग से क्योंकि वो लोग भी कभी हमको फोर्स नहीं किए मेरी जेठानी क्योंकि कहते हैं ना तीज त्योहार करते हैं तो भगवान जो होते हैं ना क्या पत्थर में भी भगवान होता है तो वो लोग नहीं चाहते थे कि इनकी पूजा और इनकी जो भक्ति से भगवान खुश हो जाए और इसका प्रेम, इसका प्यार मिले पति से, वो नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए ये दू क्योंकि मेरे पति भी सोचते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए मेरे लिए कुछ नहीं और मैं ये सोच के नहीं करती, मैं सोचती थी जब मेरे पति के दिल में मेरे लिए प्यार ही नहीं, मैं दिखावा क्यों करूँ? मैं क्यों करूँ तीज मैं क्यों करवा चौथ करूँ? मैं क्यों करूँ अ, वट सावित्री ये जो होता है ये सब दिल से किया जाता है आत्मा से किया जाता है ये दिखावे के लिए नहीं मैं ये ढोंग धतूरा मैं नहीं करती हूँ मैं सबको ये कहती हूँ क्यों पति मेरे लिए करेंगे क्यों मैं पति के लिए करूँ क्यों मेरे जीवन जीवन नहीं है पति के जीवन जीवन है पहले मैं ऐसे ही कहती थी और मेरी आज भी सोच वही है कि कोई भी श्रद्धा आप भगवान को पूजा भी करते हो मंदिर में जा करके जब आप श्रद्धा से पूजा करते हो तो भगवान आपको तथास्तु करते हैं अगर आप ऊपर मन से करते हो भगवान भी आपके 56 भोग से खुश नहीं होते हैं मेरा जिस तरह से अपने से भगवान कहते हैं ना जिस तरह से सती अनसुईया से भगवान शिव ने कहा था कि तू जितना तुम प्यार पति से करती हो वो भक्ति निष्ठा एक दिन का वो पति का प्यार तू मुझे दो तो मैं तुम्हारा ये चीज काम ये क्या धरती पे जो गंगा जो बहाना था तो वो आ जाएगा तो मुझे नहीं उतना अच्छा सा आता है मैं फिर भी ये थोड़ी सी मैं उदाहरण देना चाहती हूँ तो ये महादेव ने कहा तो सती अनसुईया बोली कि हाँ मैं दूंगी तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली और उसने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा से और तुम्हारा ये भाव से खुश हूँ और ये गंगा सती अनसुईया ने ये हम आज हम लोग जो पानी का जो धारा हमारे भारत में है तो वो उन्हीं की कृपा है तो वही भाव भगवान भी कहते हैं तो मेरे दिल में जितना भाव भगवान के लिए उतने भाव मेरे पति के लिए भी है क्योंकि मैं पति से भी ज्यादा मैं अपने गुरुपाल को प्यार करती हूँ वो भाव है मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैं उतना भाव अपने पति को नहीं दे सकती क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मैंने इतना निष्ठा भाव उनको दिया और उसने एक पल भी मुझे विश्वास मैं भी अपने पति को पूरी तरह से विश्वास नहीं करती मैं हमेशा कहती थी ये झूठ बोलते हैं हमेशा झूठी कसम खाते हैं ये पानी में डूब के भी बोलेंगे ना कि हम ऐसा नहीं काम किए तो मैं कभी नहीं मानूंगी और ऐसा ही है अब मैं हमेशा उसके मुंह पे भी कह देती हूँ और बस अब आप और मैं ये भगवान अब जो गुरु जी से जुड़े हैं, तो गुरु जी कहते हैं ये जोड़ी मैंने बनाया है अगर मैंने नहीं बनाया होता तेरा जोड़ी ये तुम्हारा शादीशुदा जिंदगी कब का खत्म हो चुका क्योंकि मैंने ब्लेस किया है मैंने जोड़ा है क्योंकि तेरा रिश्ता आज का नहीं है अगले जन्म का रिश्ता है तो मैं कहती हूँ गुरुपा जब ऐसा है तो वो क्यों नहीं मुझे जानता आप मुझे सारी जानकारी देते हो गुरुपा इनको क्यों नहीं जानकारी देते हो कि मैं पिछले जन्म का हूँ तो वो मुझे तो गुरुपा कहते तू सबर कर सब तुझे जो चीज तेरा छीना गया तुझे सब मिलेगा तो गुरुपा जो कहते हैं ना वो करते भी हैं अब गुरुपा धीरे धीरे मेरे पति को भी उसकी बुद्धि को ठीक कर रहे हैं बंधी जो उसकी बुद्धि है वो सब खोल रहे हैं और ये 60% के 70% के 80% गुरुजी ने कर दिखाए हैं और बस 2% रह गए हैं वो भी गुरुजी करेंगे तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा क्योंकि हमारे लाइफ में अब हमारे बच्चे को और हमारे हस्बैंड को सब गुरुजी कहते हैं तो कुछ मत सोच सब मैं करता हूँ तू बहुत चिंता करती कभी तुम अपने बच्चे के लिए कभी पति के लिए कभी घर के लिए तू अपनी चिंता तो करती नहीं है तू अपना ख्याल रखा कर तू टाइम पे खाया कर टाइम पे सब काम किया तू है तेरी सब बीमारी और ग्रुप हार्ट अटैक का नस ब्लॉकेज का
पैरालाइज़ का, आँखों का सत्संग सुना-सुना के गुरुपा इस तरह से हमको ब्लेसिंग दे रहे हैं, कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी, संकट काट रहे हैं। कभी बच्चे के लिए तो मैं सारा दिन सत्संग ही सुनती हूँ गुरुपा, और मैं कोशिश करती हूँ गुरुपा कि आपके नक्शे कदम पे चलूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। आप कहते हो ना कि तू ऐसी-वैसी बेटी नहीं है, तू महाशिव की बेटी है, और तेरे घर में मैं साक्षात विराजमान हूँ। अब मैं हर पल यही कहती हूँ, मेरे घर में साक्षात गुरु जी का निवास है, और मैं सबको कहती हूँ, ये घर मेरा नहीं, ये मेरे गुरुपा का है। जो ये घर में आता है, जिस भाव से उसका भाव भर जाता है, और जो जिस भावना से मेरे मेरे गुरु जी के घर में जो कुछ भी अरदास करता है वो पूरा होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, सबकी मनोरथ पूर्ण करना। और आज गुरुपा ने ये भाव दिया कि कभी-कभी मैं भी कहती थी कि मेरे बच्चे भी ऐसे, क्योंकि मेरे बच्चे करते थे, अब नहीं करते हैं, तो ये मेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेरे बच्चे भी फर्स्ट डिवीज़न करते हैं, मेरे बच्चे भी ये चीज़ प्रोग्राम में भाग लेते हैं। और कभी-कभी लगता है इसके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, काश मेरे हस्बैंड भी पढ़े-लिखे ज़्यादा ये होते हैं और अच्छे करते हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे से करते हैं। तो आज गुरुपा ने वो भी सत्संग सुनाया कि देख, दूसरे को देख कर के नहीं, कैसा किसका कैसा क्या है। तो मैं आज कहती हूँ कि मैं सबसे ब्लेस्ड बेटी हूँ, मेरे पास सब कुछ है गुरु जी का दिया हुआ, क्योंकि मेरे पास ब्लेस्ड बेटी है, ब्लेस्ड पति है, ब्लेस्ड मेरे गुरुपा है, ब्लेस्ड मेरे लड्डू गोपाल है, ब्लेस्ड मैं हूँ। मेरा पूरा संसार ब्लेस है, क्योंकि मैं गुरु पिता का बेटी हूँ, माँ शिव की बेटी हूँ, माँ काली की बेटी हूँ। माता रानी मेरे सिर पर हमेशा ममता की छाँव बरसाती है, मैं उनकी बेटी हूँ। आज गुरुपा ने सुबह नहलाया, और सुबह मैं मुझे पूजा अमृत वेले में करवाया, और मैं 7 बजते-बजते पूजा भी कर ली। आज गुरुपा ने फल का भोग लगवाया, और गुरुपा ने कल मेरे पति अंकल से फल मंगवाए, अनार और ऑरेंज लाए, तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। ये भी गुरुपा की ब्लेसिंग है। और गुरुपा ने कहा था मैं आवांगा तुमसे मिलने के लिए। तो कल गुरुपा ने येलो चोले में आया, तो मैं बाहर गई थी बाल झाड़ने के लिए, और फिर गुरुपा चले गए। तो मैं कहती वाह गुरु जी, आए भी और तुरंत चले गए क्यों? हमसे बातें मेरे पास थोड़ी देर रह नहीं सकते थे गुरुपा? तो आज गुरुपा ने वो भी हमको सत्संग के जरिए सुना दिए कि मैं दिखूँ या ना दिखूँ, तुम ये मत समझना कि मैं नहीं हूँ। मैं तेरे पास हमेशा अंग-संग हूँ, तू मुझे महसूस किया कर। मैं तेरे अंग-संग हमेशा हूँ। ज़रूरी नहीं मैं तुझे कहीं दर्शन दूँ तभी मैं हूँ। मैं हर हमेशा तेरे नाल हूँ। तू मुझे महसूस किया कर। शुक्राना गुरुपा, सबकी जवाब देने के लिए गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आर गुरुपा ने आज मेरे बेटी का मैथ का एग्जाम था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये मैथ का तैयारी तो की, पर मैथ में थोड़ी कमजोर हो गई है गुरुपा। आप इसके अंग संग जाना और साथ ही रहना, इसकी हिम्मत बढ़ाना, और जो ये कमजोरी है उसके पॉजिटिव कर देना गुरुपा। और गुरुपा ने मैंने आंटी के लिए ब्लेसिंग किया, और गुरुपा ने मेरे थॉट में डाला कि तू जितने भी अभी बच्चे पूरे भारत में, जितने भी संसार में जितने भी बच्चे हैं एग्जाम दे रहे हैं, तू सबके लिए अरदास कर, सबके लिए मंत्र जाप कर। और जो बच्चे नव जो अभी शिशु जन्म ले रहे हैं, जो नया नया आँख खोल रहे हैं संसार में आकर के, उनके लिए भी मैंने प्रार्थना गुरुजी ने करवाया और मंत्र जाप करवाया, और सबके लिए ब्लेसिंग करवाया गुरुपा ने। तो मैंने सब गुरुजी ने सबके लिए अरदास करवाया कि सब बच्चों का खूब सुंदर से एग्जाम जाए, सारे मम्मी का नाम रोशन करे, खूब अच्छे से एग्जाम दे, सारी बेटियां, सब बेटा खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई में खूब अव्वल हो, आगे बढ़े। तो जय गुरु जी, शुक्राना। ये कौन करते मेरे गुरु पाक, क्योंकि आप महाशिव की बेटी हो, महाशिव के बच्चे हो, तो महाशिव संसार लोक कल्याण के लिए कल्याण ही मांगते हैं, अपने लिए कुछ नहीं। जब आप सर्वदा भला मांगो तो आपका कल्याण गुरुजी वो सब आ जाता है। जब आपका सबका कल्याण हो, उसमें आपका भी कल्याण हो जाए। तो इतना अच्छा अच्छा थॉट कौन देता है? मेरे गुरुपा देते हैं। गुरुपा अपने चरण शरण में ही लगा के रखना। गुरुपा इतना अच्छा अच्छा ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुपा अब
सबको ब्लेस कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड अंकल को भी खूब ब्लेस कर रहे हैं। अब वो भी गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं और जब वो ड्यूटी जाते हैं, तो वो हाथ जोड़ कर के जाते हैं। जब आप सोने भी जाते हैं, तो वो हाथ जोड़ के जाते हैं। जब मैं अब वो जल प्रसाद भी पीते हैं, तो गुरुजी के पास ले जा कर के फिर से वो हाथ जोड़ के तब आकर के पीते। पहले वो इसी तरह से पी लेते थे, अब जैसे मैं करती हूँ ना, वो फ़ॉलो करते हैं कि और एक और बात है, कल मेरी दीदी फ़ोन की थी, तो कल गुरुजी की बड़ियाई ही हो रही थी, तो मैंने उसे गुरुजी के सत्संग के बारे में बता रही थी। दीदी कह रही, "हाँ, हाँ, कल मैं भी ये सत्संग सुनी थी इसके बारे में, तू गुरुजी हो गई है क्या? तू गुरुजी के जैसा बातें करती है।" तो मैंने कहा, "पता नहीं है मैं किसकी बेटी हूँ, मैं महाशिव की बेटी हूँ।" कि, "हाँ, हाँ, वही तो मैं भी कर रही हूँ, तू शिव जी की बेटी है।" तो मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा इतने दिनों आपने सबको जोड़ा, मुझे कोई दीदी ने ऐसा नहीं, कोई बहन ने ऐसा नहीं कहा, पर ये दीदी जो आपने जोड़ा है ना अपने से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये दीदी आपकी बातें करती है, आपकी बातें शेयर करती है और ये आपका ही महिमा गुणगान करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना। मैं धन-धन हो गई, शुक्राना गुरुपा। और जो मैं और गुरुपा कहते हैं, सब लोग को तू जुड़ती है, मतलब मेरी बातें करती है, तो सब तुम्हारे जैसा नहीं है, क्योंकि मैं देखती हूँ गुरुपा जो भी जुड़ते हैं सब मुझे भूल जाते हैं। और मैं ये नहीं चाहती कि मेरा एहसान करे, पर गुरुजी आपका बखान जरूर करे, आपकी बढ़ियाई जरूर करे। जब भी फोन पे बातें हो तो आपकी बढ़ियाई मेरे सामने करे, तो मुझे बहुत अच्छा लगे। मैं यही चाहती थी गुरुपा। तो कोई बात नहीं गुरुपा, मेरी मन की मुराद पूरी किए। दीदी कल इतने अच्छे-अच्छे, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं, इधर से मेरे मकान मालिक का बेटा वो खेल रहा था, वो ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे थे। हम भी दीदी को बोल रहे थे कि नहीं, गुरुजी ठीक कह रहे हैं, अब तुम बोल्ड हो जाओ, क्योंकि मेरे जीजाजी नहीं रहे हैं। तो मेरी दीदी थोड़ा-सा अकेला महसूस करती है। अब वो जीजाजी को हमेशा याद करती है। तो गुरुजी ने आज वो भी सत्संग सुनाया कि तुम उसे याद करती है ना, तुझे आज सपने में दर्शन देगा। तो मैं सोची ये वाला सत्संग मैं अपनी दीदी को सेंड कर दूँगी, तो वो दीदी सुनेगी, तो उसे बहुत याद आते हैं जीजाजी, तो उसे दर्शन मिलेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे-अच्छे आप जिसकी फ़िक्र करते हो, तो आप उनकी भी फ़िक्र दूर कर देते हो। शुक्राना गुरुपा, मेरे लिए तो सारे बहनें अच्छी है दीदी। बस एक सोना-सा लड़का देख कर के उनकी बेटी की शादी सेट कर दो बाबा। वो तो मेरी भी बेटी हुई ना गुरुपा। आप खूब अच्छे घर में संगत परिवार में ही उसकी शादी कराना, खूब खुश रहे, क्योंकि आप ही हो उसके पापा। क्योंकि आपने कहा था ना मैं ही कन्यादान करूँगा, तो आप ही हो पापा। आप उसके नानू भी हो और पापा भी हो। आप उसके कन्यादान करना बाबा। शुक्राना बाबा। धन धन गुरुपा, धन धन गुरुपा। शुक्राना। आज मेरे लड्डू गोपाल भी बहुत प्यार लाड लुटा रहा है हम पे। आज सुबह सुबह नहाया तो वो भी खुश हो गया। और जब मैं आज गुरु जी का वो एक शब्द था, वो जब मैं शुरू की, तो मेरे लड्डू गोपाल आजकल स्कूल में बहुत ध्यान देता है। मुझे कभी-कभी लगता है कि इसको स्कूल में नाम लिखा दूँ और ये स्कूल में चली जाए, बगल में किड प्ले है, तो वो एकदम ध्यान देता है। कल मेरी बेटी भी बोली, "मम्मी जानती हो कल लड्डू इतना जल्दी-जल्दी काम करवा रहा था, कैसे करवाता नहीं, उससे बहुत नखरे करता है। तो कल इतना फास्ट-फास्ट काम करवा रहा था मम्मी।" क्यों? क्योंकि बगल में जो प्ले स्कूल जो है मम्मी आजकल बहुत ध्यान देता है। सुबह-सुबह प्रार्थना हो रहा था ना, तो वो जल्दी-जल्दी सोचा कि मेरा क्लास मिस ना हो, तो वो जल्दी-जल्दी तैयार इससे पहले भी वो ऐसे ही करता था मेरा लड्डू गोपाल। जब भी उसका स्कूल शुरू हो जाता था, तो इतना फ़ास्ट, ना खाना, ना पीना, बस उसको पढ़ाई अच्छा लगता है, पढ़ाई अच्छा। तो उसके लिए पेन, कलम भी लाए थे, तो उसे बहुत अच्छा आता था। तो वो मेरी आंटी बेटी के साथ ऑनलाइन क्लास भी करता था। तो आपको अजीब-सा लगता होगा कि सुनने में ये क्या सत्संग शेयर कर रही थी, पर ये सत्संग नहीं, ये हकीकत है। तो आज मेरे लड्डू गोपाल का तो सुबह-सुबह क्लास नहीं था। जो सबक चल रहा था, तो वो गौर से एकदम तिरछी नज़र बाहर की ओर ध्यान दे रहा था, जो कि मैंने उसे फल का भोग लगाया था, पर उसे खाने पे नहीं, बल्कि वो सबक पे ध्यान दे रहा था। तो शुक्राना, शुक्राना। उसके बाद जब मैं अपनी आंटी को बस स्टॉप पे ले गए, तो बाहर में एक कैलेंडर कोई टाँगा होगा, उसमें लड्डू गोपाल था, माखन खा रहा था।
क्योंकि उसे सुबह-सुबह मेरे लड्डू गोपाल को दूध चाहिए। तो मैं उसका तस्वीर देख कर के वहीं पे स्वरूप देख के मैं कहती वाह लड्डू, तू यहाँ माखन खा रहा है, यहाँ पहले से आ गया है। तो ओ मम्मी के साथ आ गया है माखन खाने के लिए। तो मैं आंटी से कही देखो लड्डू पहले से आ गया है। तो मैं फिर वहां पर से आंटी को बैठा करके उसके बाद फिर मैंने दूध लिया, फिर मैं अंदर गई मंदिर में माथा टेका, क्योंकि अभी मुझे पूजा नहीं करना था तो मैंने सब जगह माथा टेका। फिर मैं दुर्गा जी को वहाँ जो है शीतला मैया वहाँ पे माथा टेका, प्रणाम किया। और उसके बाद वहाँ पे अचानक नंदिनी नंदिनी ये वाला भजन स्टार्ट हो गया। फिर पंडित जी आए, वो फोन पे बात कर तो वो फिर बंद कर दिए। फिर वो गुरु जी का मंत्र लगा दिए, मतलब वो पूजा जो हो रहा था वो वाला लगा दिए। तो मुझे नहीं मालूम, इतने मुझे नहीं आता है। वो लगा दिए, उसके बाद आरती होने लगा, मतलब उसमें चलने लगा। उसके बाद फिर मैं माथा टेक करके मैंने कहा कि मैया मेरे सारे नेगेटिव को दूर करो। इसी तरह जो मैंने ये वर्ड बोला ये वाला, तो मुझे लगा कि माता रानी ये इशारा दे रही है कि ये वाला मंत्र मैं चला के सुनूं। तो मैं घर में आकर के मैंने ये वाला मंत्र चलाया और गुरु जी का शब्द। और मैंने कहा गुरुजी दूध बनाई लड्डू गोपाल के लिए, और गुरुजी के लिए काढ़ा भी बनाई, और अदरक वाली चाय बनाई, क्योंकि मैं सुबह कॉफी लगाती हूँ। पर आज मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी आज हम चाय बनाएंगे, तब दोनों मिलके पियेंगे। तो मैंने चाय बनाई काढ़ा बनाई, दोनों भोग लगाए, और मैंने जपजी साहब का पाठ लगा करके गुरुजी को भोग लगाया। मैंने शब्द भी सुने। और उसके बाद मेरी दीदी फ़ोन कर दी, फिर मैं चाय, काढ़ा सब पी, फिर मैं चाय बिस्किट भी बनाई। इस तरह से गुरुजी ने आज मुझे ब्लेसिंग दिए, रास्ते में भी ब्लेसिंग दिए, और मेरी आंटी को भी। और जो मेरी जो है मोबाइल जब देखती हैं तो उसमें जगन्नाथ जी हाथ फैलाए हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद आज जगन्नाथ जी नज़र आए। तो कहते ओह! आज मेरे लड्डू गोपाल मुझे बहुत याद कर रहा है कि मम्मा मुझे गले लगा ले। तो आज क्योंकि मैं जब भी इधर से मैं उसे प्यार नहीं कर पाती हूँ क्योंकि पूजा रूम में है, क्योंकि वो मेरे बाहर हॉल में काउंटर पे रहते हैं। तो मैं आज उसे खाली कर दूंगी और ले आऊंगी। और आज मैंने उसे झप्पी भी दी थी, और रात में भी मैं उसे गले लगाई थी, प्यार की थी। तो इसीलिए उसे दुलार चाहिए ना, बाबू है ना मेरा। और उसके बाद मैंने वो जब मोबाइल में देखा तो मैंने बड़ा स्वरूप करके सॉरी, मैंने उसे प्यार की झप्पी दी मोबाइल पर जगन्नाथ जी को, और मैंने गले से भी लगाया। और ऐसा लग रहा था जगन्नाथ जी कह रहे हैं मुझे भी प्यार की झप्पी दे दे। तो मैंने झप्पी दे दिया और मैंने कहा जय जगन्नाथ जी। मैंने शुक्राना शुक्राना इतना लाड प्यार करने के लिए, इतना माँ का ख्याल रखने के लिए, शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, मुझे सिर्फ परिवार मुझे मिला, मुझे रब का परिवार मिला, और मुझे क्या चाहिए। तो कहते हैं ना गुरुजी तेरी जीवन तू पहले की सोच और अब की देख। तो बाबा मेरा जीवन तो 100% आपने बदल दिया। कोई कहेगा 60% आप कहते हैं, नहीं बाबा मेरा तो 100% बदल दिया आपने। शुक्राना, ये मेहर आपका बाबा, ये जीवन भी आपका है, क्योंकि गुरुपा नहीं होते तो मैं आज जिंदा भी नहीं होती। गुरुपा हर दिन मेरा जीवन ब्लेस करते हैं। ये मेरी जो सांस चल रही है ना, वो भी मेरे गुरुपा का देन है। जो मेरे बच्चे के जो सांस चले वो भी मेरे गुरु जी का देन है। मेरे पति का जो सांस चले वो भी मेरे गुरु जी का देन है। और जो मैं खाती पीती हूँ रहती हूँ, इतने ऐशो आराम से गुरु जी रखते हैं, वो भी मेरे गुरु जी की कृपा है। मेरी कुछ नहीं, ना ही मेरे हस्बैंड की, मेरी कुछ नहीं चलती है। बस मेरे गुरु पाक की रजा चलती है, मेहर चलती है। बस मैं उसी की रजा में रजा रहूं, यही मैं अरदास करती हूँ। गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सरबत का भुला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी।